Hello friends, I am Ankita Tiwari. Today I am going to tell you about the next chapter, pronoun. In Hindi we called it Sarvanam. Now I tell you the definition of pronoun. A pronoun is a word which is used instead of a noun. Or also we can say that a pronoun is a word which is used in place of noun. In Hindi संज्ञा के स्थान पे हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी, ही, दे, इट, हर, हिज, हिम, इट्स, ये सारे चीज़ें जो हैं प्रनाउन हैं. ही, शी, इट एंड आई, ऑल दीज आर यूज्ड in place of singular noun. He is used as a masculine. She is used in place of feminine. It is used in place of non-living thing, animal, plant. We, they is used in place of plural noun. जब हम लोग अपने बारे में बात कर रहे होंगे then we use we. दूसरों के बारे में जब बात हो रही होगी then we use they. Now I explain the types of pronoun. Number 1 is your personal pronoun. Number 2 is your possessive pronoun. Number 3 is your demonstrative pronoun. Number 4 is your reflexive pronoun. Number 5 is your relative pronoun. Number 6 is your reciprocal pronoun. Now, your first topic is personal pronoun. A personal pronoun refers a specific person or object or group of things directly. पर्सनल प्रोनाउन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे किसी स्पेशल पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट और ग्रुप के बारे में बात हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल ही, आई, शी, यू, इट, दे, मी, हु, हिम, whom, her, them, etc. Personal pronoun can be derived or divided into 3 parts. Number 1 is your first person, number 2 is your second person and number 3 is your third person. First person हम उसे कहते हैं यानी कि मैं और हम लोग अगर बात कर रहे हों तो वहाँ होती है आई, वी, मी और अस की बात. सेकेंड पर्सन यानी कि मैं किसी दूसरे से बात कर रही हूँ देन वी यूज़ यू प्रनाउन. नंबर 3 हम दोनों मिलके किसी तीसरे के बारे में अगर बात कर रहे हों देन वी यूज़ शी, ही, दे, इट, हर, हिम, देम, थर्ड पर्सन प्रनाउन. नाउ शो इन द टेबल इट इज़ डिवाइडेड इनटू सिंगुलर और प्लूरल प्रनाउन. Person can be divided into first person, second person, third person. How we used as a subject or object. Singular pronoun. First person में हमने इस्तेमाल किया I का as a subject और इसे जब हम object में यूज़ करेंगे then we use me object. Second person जब हम लोग subject के तौर पे इस्तेमाल करेंगे then we use and object के तौर पे इस्तेमाल किए you. No changes in you as a subject or object. Number 3rd person he, she, it. He, she, it is used as a subject. He changed into him, she changed into her and it changed into it as a object. Plural pronoun. First person used as we, subject and object change into us. Second person you, no changes in you. And the third person they, वे लोग, change into them as a object. Now your next topic is possessive pronoun, जिसमें हम लोग ऑनरशिप के बारे में पता करते हैं कि जो भी सामान है वो किसका है. A possessive pronoun describes a close possession to or an ownership of or relationship to a noun, a person or a thing. कोई भी हमारे पास पर्सन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किसका है उसके ऑनरशिप के बारे में बात की जाती है, उसे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिज,
योर्स, हर्स, माइन, आवर्स, देयर्स, माइन, इटीसी। उसका है, तुम्हारा है, मेरा है, हम लोगों का है या वे लोग का है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमें ऑनरशिप के बारे में बताती हैं और ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जस्ट शो इन द टेबल इट इज़ डिवाइडेड इनटू सिंगुलर और प्लूरल pronoun. Person is your first person, second person, third person. Possessive pronoun फर्स्ट पर्सन आई होता है तो उसके जगह पे जब ऑनरशिप में हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे देन वी यूज़ माइन। इन सेकेंड पर्सन यू होता है तो उसके जगह पे हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे योर्स। थर्ड पर्सन जो कि ही सी इट होता है उसके जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे हिज, हर्स, इट्स। In plural pronoun, first person is your we, then we use possessive pronoun ours. Second person is your you, then we use possessive pronoun yours. Third person is your they, then we use possessive pronoun theirs. Just show the example. Number 1, this book is yours. ये किताब तुम्हारी है। This laptop is mine. ये लैपटॉप मेरा है। That car is hers. ये कार जो है उसका है। These houses are ours, not theirs. ये घर हमारा है ना कि उनका। He lost his books. उसने अपनी किताबें खो दी हैं। He needs yours. वो तुम्हारी किताब चाहता है, उसे ज़रूरत है। This computer is mine. ये कंप्यूटर मेरा है, not yours. तुम्हारा नहीं। Now the second topic is your reflexive pronoun. A reflexive pronoun expresses a noun when the subject's action affects the subject itself. Reflexive pronoun वो pronoun होता है जो कि जिस तरह का हमारा subject रहेगा, चाहे वो noun हो या pronoun हो, उसी के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट जो है चेंज होता है एज अ रिफ्लेक्सिव pronoun. There are 8 types of reflexive pronoun. Number 1 is your herself, yourself, himself, ourselves, itself, themselves, yourself, and itself. These are the reflexive pronoun. A reflexive pronoun always acts as an object. अभी मैंने बता चुका है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा, नॉट एज अ सब्जेक्ट। ये कभी भी सब्जेक्ट में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। एंड इट एक्सप्रेसेस इंटर इन्फ्लुएंस बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। जिस तरह का हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। जस्ट सो इन द टेबल इट इज़ डिवाइडेड इंटू सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन. Number 1, first person, second person, third person. Subject is your I. If in the sentence I used as a subject, then its reflexive pronoun is myself used as an object. You. If you is as a subject, then we use yourself as a reflexive pronoun. He is a subject, then we use himself as a reflexive pronoun. She used as a subject, then we use herself as a reflexive pronoun. It is used as a subject, then we use itself as a reflexive pronoun. We used as a subject, then we use ourselves used as a reflexive pronoun. You as a subject, then we use yourselves as a reflexive pronoun. They used as a subject, then we use themselves as an reflexive pronoun. All reflexive pronoun write in a object. Then firstly you also show that in the table self और selves. सेल्फ हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ, सेल्फ्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के साथ. Now the next topic is reciprocal pronoun. A reciprocal pronoun is used when two or more nouns are reciprocating to each other
और वन अनदर इन सम एक्शन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होता है जब दो और दो से ज़्यादा नाउन इस्तेमाल हो रहे हों और वहाँ पे वो सारे एक साथ कुछ भी कर रहे हों, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं ईच अदर और वन अनदर एज अ reciprocal pronoun. A reciprocal pronoun is used if two or more subjects act in a same manner towards each other or one another. तो अभी मैंने बताया रेसिप्रोकल प्रोनाउन वहीं इस्तेमाल होगा जब दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों और एक ही काम कर रहे हों। देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है आपके। नंबर वन इज योर वन अनदर एंड नंबर सेकेंड इज योर ईच अदर। वन अनदर यूज्ड विथ if two more than two noun, then we use one another. Each other is used when two persons things are used. For example, two girls pushed each other. यहाँ दो लड़कियों के बारे में बात हो रही है, then we use each other. Sarah and John दो लोग हैं, love each other. द पीपुल इन द पार्टी ग्रीटेड वन अनदर। लोग हैं, बहुत सारे हो गए, दो से ज़्यादा हो गए, देन वी यूज़ वन अनदर। टू स्टूडेंट्स इन एग्जाम कॉपीड फ्रॉम ईच अदर। दो बच्चों के बारे में बात हो रही है, देन वी यूज़ ईच अदर। द बॉल्स ऑन द स्नूकर टेबल कोलाइडेड विथ वन अनदर। बॉल्स हैं, यहाँ संख्या के बारे में डिटेल नहीं बताया गया है, देन वी यूज़ वन अनदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर रिलेटिव pronoun. A relative pronoun is a word which is used in relation to a noun and modifies the same noun. Relative pronoun वो noun होता है जो कि noun को और अच्छे से डिस्क्राइब करता है, उसके रिलेशंस के बारे में बताता है। Relative pronoun are those pronoun that join relative clauses and relative sentence. दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने में रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच, हु, डैट, हुम, हुज, दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहला चीज़ है आपका विच। विच कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं? विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग, एनिमल। हु, हुम और हुज ये इस्तेमाल होता है पर्सन के साथ। डैट is used for both person, non-living things, animals. For example, she is the girl, ये एक लड़की है, who sings song, जो कि गाना गाती है। The word who in the above sentence is a relative pronoun. इस सेंटेंस में आपको who जो है relative pronoun है। That modifies tell more about the noun girl, जो कि और अच्छे से गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। The same pronoun join the sentence she is the girl to a clause sing song. Sentence आपका दिया था she is the girl, clause sing song जो कि clause है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसका था? who का, जो कि एक relative pronoun। For example, it is the dog, ये एक कुत्ता है, which barks at stranger, जो कि अनजान व्यक्ति पे भौंकता है। तो अभी मैंने बताया which is used for non-living thing, animal। द गर्ल हु इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, यह लड़की जो कि गार्डन में घूम रही है, इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो कि काफ़ी सुंदर है। इट इज़ द लैपटॉप विच आई लाइक द मोर, ये एक लैपटॉप है जो कि मैं पसंद करता हूँ। तो लैपटॉप इज़ नॉन लिविंग थिंग, देन वी यूज़ विच। हम लोग डैट भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते थे। इट इज़ द लैपटॉप डैट आई लाइक मोर। दे वेयर द पीपुल हु हैड कम आउट फॉर अ स्ट्राइक, ये वे लोग हैं जो कि स्ट्राइक के लिए बाहर आ चुके हैं। पीपुल के लिए अभी मैंने बताया हु, हुम और हुज का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू अ नाउन जस्ट लाइक अ पर्सन, थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि किसी नाउन को दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दीज आर दैट, दिस, दोज, दीज, नन, नाइदर। द मेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज योर दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं
पास के ऑब्जेक्ट को जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। ओके, एंड डैट और दोज का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जो हमारे बहुत से बाहर होती है, जो काफ़ी दूर होती है, बस उसे हम लोग इशारे से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक। अगर मैंने हाथ में किताब ली हुई है, देन वी कॉल्ड इट दिस इज़ अ बुक, यह किताब है। दैट इज़ अ कार। अगर वो कार दूर है, देन वी यूज़ दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर डक्स। दिस एंड दैट यूज्ड एज अ सिंगुलर प्रोनाउन, दीज और दोज यूज्ड एज अ प्लूरल प्रोनाउन। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। तो दीज आर डक्स। डक्स अगर पहुँच में है, छू सकते हैं, तो हम लोग दीज का इस्तेमाल किए। दोज आर बर्ड्स। चिड़िया उड़ रही है आसमान में, तो हम उसे टच नहीं कर सकते, देन वी यूज़ दोज। कैन यू सी दैट। क्या तुम इसे देख सकते हो, उसके पहुँच से दूर है, देन वी यूज़ दैट। ओके, सो बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।